Good afternoon. Yeah, yes. Please have a seat. Yes, please begin. Yeah, we'll start. So first of all, introduce yourself. Yes, ma'am. Ma'am, firstly, thank you for providing me this opportunity. My name is Purva. I basically hail from Haryana, but currently residing in Chandigarh. I have completed my academic qualification from Model Schools of Chandigarh only. Then, about my professional qualification, I have done B.Ed from Kurukshetra University. Coming to my achievements, I have qualified my UGC NET exam and HTET level 3, that is for the PGT, post of PGT economics exam. And I also got cash reward of rupees 1 lakh along with the certificate of merit and appreciation letter from then Education Minister Mrs. Smriti Zubin Irani for being into top 0.1% students in class +2. And apart from that, I also got a NCCC certificate with A gradation. And about my family, my father is working as headmaster with the education department Chandigarh in Chandigarh, and my mother is working with the Department of Secondary Education, Haryana government. My husband also works with the Haryana government. My short-term goal is to secure a position in reputed institution, and in the long term, I want to contribute towards the national development through my hard work and perseverance. Okay, thank you so much. It's very appreciating. And so let me know about why do you want to join the teaching profession? Yes, ma'am. As I said, my father is also into the teaching line, so teaching is in my genetic material, and I have passion for teaching also. And I believe teacher is a person who is like a torch bearer, who guides the students, who shape the future generation. So I want to shape our future generation. That's why. So if you got a job as a teacher, so how will you maintain discipline in your class? Ma'am, I believe What's the strategy regarding that? Yes, ma'am. Ma'am, I believe discipline in your class, discipline in any class goes off when the teacher fails to engage the class. So there might be certain reasons for that. The teacher, there might be certain problems with the students or the teaching learning methods or any reasons could be there. So I will first ascertain those reasons and try to solve them. Okay. And what are your strengths and the weakness? My strengths are that I'm adaptable and I am patient, which is the most required for being a teacher, and I'm optimist. And my weaknesses are that I easily rely people, and I cannot say no to people who are in need. Okay, so how can you overcome this weakness? Ma'am, I am working on that. Okay. I am trying to understanding the society. Okay. Okay, thank you. Now, since now the general part is done, let's have a discussion about some technical aspects of your job. So let's see how well versed you are with the concepts. If I give you a theory, for example, what is general equilibrium theory according to you? So general equilibrium theory, we deal with this theory in macroeconomics. Okay. So here we try to determine the general equilibrium in case of income, employment, and interest. Okay. So who developed this theory? Who gave this theory? So this theory was given by Sir John Maynard Keynes, who was the bureaucrat in the Britain at that time. Are you sure about the name? Yes. Wasn't that Mr. Leon Walras? No, sir. Okay. General. All right. Thank you. Yes, sir, please. Okay. So, are you prepared with your demo? Yes. So, which topic have you prepared? Sir, I have prepared theory of demand. Okay, theory of demand. Can you teach? Yes. Start. Sir, can I please? Yeah. Sir, shall I assume this from my classroom? Yeah, Yeah, sure. sure. So, good afternoon, class. How are you all today? All good.
ओके, आई एम आल्सो वेरी फाइन बच्चा। बच्चा आप लोग जो हो वो अभी लोकल स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, ये बाहर भैया ने नई दुकान खोली है ना, पेन लेने के लिए आप लोग जाते हो। तो जब आप पेन लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो उनसे, भैया मुझे पेन चाहिए, या फिर अगर आप इंग्लिश यूज करते हो तो क्या बोलते हो, आई वॉन्ट दिस पेन, है ना। सो व्हाट डज दीज टू वर्ड चाहिए इन हिंदी एंड वॉन्ट इन इंग्लिश सिग्निफाई, क्या हमें यहाँ से समझ में आता है, रिक्वायरमेंट, है ना, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो बच्चा, डिमांड, किसी भी चीज की आप डिमांड करते हो उस चीज को। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, कि किस चीज को हम बोलेंगे कि ये डिमांड है और या ये डिजायर है या ये विशफुलनेस है, उन तीनों में क्या डिफरेंस होगा और कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। सो फर्स्टली देयर आर 3 एलिमेंट्स व्हिच कंप्राइज डिमांड। नंबर 1, there should be desire to have the commodity, and this desire, it should be backed by the sufficient purchasing power, and the third element is willingness to spend should also be there. ओके, सो बच्चे जब भी आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हो या उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता आपको कहीं से लगता है, तब जाकर के आप जो उस चीज को परचेज करते हो। सो इसका मतलब क्या है, उससे पहले आपके माइंड में एक कंसेप्शन आएगी, यस दैट आई शुड हैव दिस थिंग, तो वो आपकी क्या हो गई, डिजायर। तो अब सिर्फ डिजायर होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना बच्चे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आज बच्चे को बताएगा क्या होना चाहिए सेकंड एलिमेंट, एग्जैक्टली द परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसको परचेज करने के लिए हमारे पास मनी भी होनी चाहिए। अब क्या सिर्फ डिजायर और मनी होने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास डिजायर भी है, आपके पास मनी भी है, बट आप माइजर हो। माइजर मतलब क्या होता है, हाँ जी बच्चे क्या होता है माइजर, कंजूस, है ना, जो पैसे खर्च ही नहीं सकता। तो आप पैसे नहीं खर्च कर सकते हो तो बेशक आपके पास दोनों एलिमेंट्स हैं, पर आप उसको विल स्पेंड नहीं कर सकते हो, तो आपकी डिमांड जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, राइट। तो हम डिमांड किसको कहेंगे, जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स, डिजायर टू हैव द कमोडिटी and that desire should be backed by the sufficient purchasing power and willingness to spend। जब ये तीनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे उसको हम कहेंगे कि वो डिमांड। क्लियर बच्चे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो? Okay, shall I rub it? Next we are going to study the determinants of demand. What are those factors which affect our demand? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो हम आज देखेंगे यहाँ पे। I am writing the equation here which is Qx is equal to f of Px, PR, Y, T and E. What does this equation mean? Here Qx stands for the quantity demanded of the commodity X. I am assuming that we are going to purchase the commodity X. You can assume this commodity X as anything. Like you want to purchase pen, you purchase pen. You want to purchase mangoes, you purchase mangoes. So this X is the commodity that you are going to purchase, right? So Qx represent the demand of that commodity. Then it is the F represent for function. है ना, हम relation function पढ़ते हैं class +2 mathematics में. So this function, it means that it is dependent upon what? These 5 factors. So what are these 5 factors? Px is the on price of the commodity. जो commodity है उसका खुद का price। सबसे पहले तो किसी भी commodity का जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके खुद के प्राइस पर डिपेंड करेगी। ये इन दोनों का रिलेशन हमें कौन देता है, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी बच्चा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, क्या समझ में आता है हमें लॉ ऑफ डिमांड से, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। इसका कोई रिसेंट एग्जांपल तो ऐसा कुछ हुआ है इंडिया में?
किसी चीज का ऐसे जो नॉट डिमांड का, यस, कोई एग्जांपल आपके माइंड में हो जो करंट में चला? ये तो हम देखते ही रहते हैं। अगर जैसे मतलब कैरेट्स के प्राइसेस जो हैं, लास्ट वीक कैरेट्स के प्राइसेस जो थे वो ₹20 पर केजी थे। नहीं, ये जो कॉमोडिटी ये वेजिटेबल है इसके नहीं, कुछ जो मेन हुआ इंडिया में भी, करंट में भी चला है कि डिमांड बढ़ा है उस चीज़ का और उसकी सप्लाई कम हो गई है कुछ करंट से। जो करंट में चला है अभी, जो न्यूज़ में भी आया है। सर अभी तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए रिगार्डिंग कुछ हो रहा है ऐसे, नहीं, डिमांड बहुत बढ़ रही है। नहीं, चलो आप कंटिन्यू करो। तो लॉ ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे थे, दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। सो द फर्स्ट फैक्टर ऑन व्हिच द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी विल डिपेंड अपॉन इज द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड इज द पीआर। पीआर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर रिलेटेड प्रोडक्ट्स? हाँ जी बच्चे, किसी को पता है? जब हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं मतलब आपस में एक दूसरे से वो किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो तरह के प्रोडक्ट्स की, सब्स्टिट्यूट्स की एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं टी और कॉफी की, आप किस कैटेगरी में उसको डालोगे बच्चा? सब्स्टिट्यूट्स में या कॉम्प्लीमेंट्री में? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं which can be substituted in place of each other, जैसे टी एंड कॉफी है ना। अब हम हमारे घर पे जब भी कोई आता है, कोई गेस्ट आता है, what do we offer to them? What do you want? Tea or coffee? What does it mean? That they are substitutes of each other. I am assuming here that the person is not addicted to any of them, right? अब अगर कोई एडिक्ट है टी को या कॉफी को, फिर तो वो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आप ये डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड से इसको कंटिन्यू करो। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में करो इसको। हाँ जी, तो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, कि सब्स्टिट्यूट्स के केस में अगर मान लो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज कर जाता है तो उससे क्या होगा, जो कॉफी की डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी, राइट। और या फिर अगर मैं कहूँ कि प्राइस ऑफ टी डिक्रीज कर जाता है तो क्वांटिटी की जो कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग और वी आर सब्स्टिट्यूटिंग कॉफी विद टी, राइट। Complementary products are those products which complement the demand of each other, like car and petrol. अगर एक की डिमांड नहीं होगी तो दूसरे की भी डिमांड नहीं होगी। अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम बिना कार के तो पेट्रोल को यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर प्राइस की इसके डिक्रीज हो जाती है तो इसकी इंक्रीज कर जाएगी। अब इसमें आप रिलेशनशिप देखो बच्चा कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आइदर दे आर इंक्रीजिंग और दे आर डिक्रीजिंग। यहाँ पे वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, सब्स्टिट्यूट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो हाउ डज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड? इट इज वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज, है ना। अगर मान लीजिए पहले जो है वो इनकम 10,000 थी तो उस हिसाब से खर्चे हो रहे थे, अगर इनकम 20,000 हो जाती है तो उस हिसाब से खर्चे होंगे, राइट। और अगर इनकम कम हो जाती है तो फिर ये भी कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी हमारी जो है कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का टेस्ट है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए प्रेफरेंस है, तो उसका प्राइस चाहे जितना मर्जी हो जाए हमें वही चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ब्रांड कॉन्शियस जिनको बोलते हैं कि अगर उनको उसी का ही लेना है तो दूसरा ही लेंगे, वो किसी और ब्रांड पे नहीं शिफ्ट करेंगे। तो उनके लिए जो है वो प्राइस चाहे जो मर्जी हो जाए, प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उनकी क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, राइट। एंड लास्ट इज द एक्सपेक्टेशंस, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन आवर नियर फ्यूचर। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द नियर फ्यूचर इज तो सिंस प्राइसेस की बात चल रही है, आप न्यूज़ तो देखते होगे, इसमें आपको हर दूसरे दिन दिखता होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। सो अगर इतनी महंगाई की जैसे प्रॉब्लम है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को काफ़ी कम कर सकें और आम आदमी को राहत पहुंचा सकें? व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर्स टू बीट इन्फ्लेशन?
Okay. Sir, there are basically two kind of policies. One is on the front of the RBI, the central bank, and one is with the government. The policy which the RBI can manage is the monetary policy. RBI can manage it using CRR, SLR, bank rate, repo rate, इस तरह से. और government जो है वो taxation और subsidization के through influence कर सकती है. If there is the problem of inflation, then government can increase the rate of taxes. Okay. I have one more question. Liquidity trap आपने सुना होगा. जी सर. तो उसे सरल सी भाषा में मुझे समझाएंगे क्या होता है? हाँ जी सर. लिक्विडिटी ट्रैप सर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टिक कर गया है, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना तो वो डिक्रीज कर रहा है, और जो सप्लाई ऑफ मनी है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई है. दैट इज इट इज नॉट चेंजिंग. मुझे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना है. सो यू हैव जस्ट 30 seconds टू आंसर दैट क्वेश्चन. Thousands of candidates are appearing for this single position, right? Okay, so in just 30 seconds, you have to convince us that why we should hire you. Sir, as I have said that I have teaching in my genetic material, okay. So you should hire me. Secondly, I have passion for teaching, and you could have judged it from my demo also. And I am very hardworking person, and you can judge it from the consistent academic record. And I am very passionate towards the teaching. I'm optimistic. I'm a good motivator. I'm orator. That's it, sir. All right. Thank you so much. My part is done. If they have any questions, they'll continue. Yes. Okay, thank you. Thank you so much.